We will today discuss about communication theory. Please reply me. Are you getting me? Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi zidni ilma. So, why I am saying this is a interactive session, as we are discussing about communication theory. We are communicating with each other. So I am saying that I want to listen you. Can you will respond me in your messages? Okay. Thank you very much. I will start from the ways of conceptualizing the relationship between the mass media and audience. This is the definition. You can't understand from this definition that conceptualizing the relationship between the mass media and the audience, you can't understand from this. You can say that different. These are different words. Now we will decode it and code it. You have listened all these things. What I am talking, it touches your eardrum, but you can't understand. So, to understanding this issue, I will brief you in an easy way. देखें बात क्या है? It is a word. Communication is a word. It is a Latin word from communis. It means that it is a process. Communication is a process. How many of you know about mass media? Please send me a message that how many of you, that word communication is taken from a Latin word communis. How to now we will proceed that what's the process of communication? It's exchange of ideas. It's exchange of ideas, opinion, thoughts, messages. These are all things are process. When we exchange something, when we exchange ideas, opinion, thoughts, messages, these kind of things, how do we interact with the people? Different kinds of thing, different. There are different ways we speak. Just I am speaking with you. I am communicating my message. I am communicating my message. Uh, I am speaking with you. When you are writing, suppose you are giving me response with the writing. You are interacting with me. You are responding with me. Okay. And other thing is a gesture. When we're sitting with the person near to me and near to you, anybody, and you are getting some gesture, this is also a response. You are communicating. He is communicating through a gesture. Other thing is touch. When we touch something to know, we tap something. This is also interacted. You interact with someone. And next thing is related to, you can say that is broadcasting. Okay. Next thing is broadcasting. When you are getting some knowledge, some opinion through broadcasting medium, suppose you radio or there are different other things. Different. Well, now we will talk about to understand these issue. You got my point. How many ways to interact with the people? Please write something. You got this? Shazad. Uh, okay, thank you very much. This is what I want to say, that this is an interactive session. We will communicate with each other to know that what is the communication theory. Without communicating with each other, we can't understand what we are discussing. Okay. इसमें क्या है कि डिफरेंट जो फिलोसफर्स थे, उनके डिफरेंट किस्म की उन्होंने थ्योरीज जब पेश की, उन्होंने जब नरेट किया, what you could not able to understand, you please write again.
फर्स्ट थिंग वाज द प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, कैसे हम आइडियाज को, ओपिनियंस को, थॉट्स को, मैसेजेस को किसी से जब वो करते हैं, जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं, हम ऑल द टाइम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। इंटरेक्ट करने के डिफरेंट वेज हैं, स्पीकिंग के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, जेस्चर के थ्रू, ब्रॉडकास्ट, टचिंग। अब ये है कि हाउ इसको डिफरेंट स्कॉलर्स ने, डिफरेंट एक्सपर्ट्स हम कह लें, उन्होंने किस तरह से नरेट किया है। वेल, शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन्स। वो कहता है कि जब हम कोई एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जब किसी से बात करते हैं, तो हम अपना एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करते हैं। दिस इज अ सिंपल वन। एमसी क्वेल इसके बारे में क्या कहता है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस विच इंक्रीज कॉमनैलिटी। जब हम चीज को एक कॉमन एक स्टेज पर पहुंच जाते हैं, जब हम उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जो अगली, जो इसके बाद जो नेक्स्ट definition, you will understand it is bit easy. Well, exchange of facts, ideas, opinion by two or more people. Means it's a bit easy. You understand that. जब हम exchange करते हैं ideas को, this is the way of communication. उसने कहा है। अगला है जी Katz and Khan। वो क्या कहता है? Exchange of information, transmission of a meaning। मतलब कि हम ट्रांसमिट करते हैं अपने मीनिंग्स को। हम कह जो रहे होते हैं, हम कोई बात जो कर रहे होते हैं, दूसरे तक हमारी बात जाए और वो उसको अंडरस्टैंड करे, ट्रांसमिट करे। सपोज मैं आपसे उर्दू या इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आपको वो बात जो समझ आ रही है, इसका मतलब है कि मेरा मैसेज आप तक कन्वे हो रहा है। वो ये कहना चाह रहा है। ओके, यू गॉट माई पॉइंट? प्लीज टेल मी। I want to see yes or no or okay. Thank you very much. Well, इसके बाद जॉन डेवी, वो क्या कहता है? वो कहता है प्रोसेस ऑफ शेयरिंग till it becomes a common possession। means कि आपने, suppose a person who speaks in a German language, he is talking with you, you are not getting his message. Voice is touching your eardrums, you are getting, you are getting nothing from it. It means that there is something, you are listening his voice, but you are not getting, because you are not familiar. You don't have the, you can say that same field of experience. Yeah, you don't know the language। आगे हम जाके पढ़ेंगे कि ये क्या हुआ, कि जब हमने सुना भी, जब हमने देखा कि क्या एक हमारी तक आवाज पहुंच भी गई, फिर भी हम नहीं समझ सके ये क्या था। अब हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन थ्योरी के, कम्युनिकेशन के डिफरेंट टूल्स किस तरीके से होते हैं, वो काम किस तरीके से कर रहे होते हैं, जिसकी हमें जिसको हमने समझने के लिए जरूरत होती है हमें, कि कहाँ तक हम पहुंचे, कहाँ हम नहीं उसको अंडरस्टैंड कर सके। इसके अंदर जैसे मैंने पहले बताया, इसकी जो टाइप्स हैं डिफरेंट हैं। उसके अंदर वर्बल है, नॉन वर्बल है, रिटन है, लिसन है, और लिसनिंग के थ्रू। लिसनिंग क्या है? कि अब आप किसी की बात सुनते हैं, उसको आप अंडरस्टैंड करते हैं। उसके दरमियान जब जो इश्यूज जो आते हैं, आप सोर्स होते हैं, सेंडर होते हैं, आप अपना मैसेज भेज रहे होते हैं। उसके बाद मैसेज क्या है? मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मुझे आपकी आवाज आ रही है, मैंने आपको ये मैसेज भेजा। रिसीवर कौन है? आप हैं। ये एक सिंपल सा मॉडल है, SMR। सोर्स या सेंडर, जिसने मैसेज भेजा। मैसेज, जो मैंने कहा कि आपको मेरी आवाज आ रही है, ये दिस वाज द मैसेज। रिसीवर, रिसीवर कौन है? आप। अब आप मुझे ये बताएं, अगर आपको ये बात समझ आई है तो आप कहें कि जी मुझे, आई गॉट योर पॉइंट। डिड यू गेट what is SMR? You got it? I want to see your message. Thank you very much. Well, अब हमने एक नेक्स्ट जो डेफिनेशन थी, जो लास्ट वन थी, प्लीज राइट इट अगेन, बट यू राइट इट, प्लीज राइट इट अगेन। I couldn't get it. It was a
Okay, thank you. Next is, well, I am trying to convey my message. I am a sender. Message is, what is message? We want to learn about communication theory or communication process or communication tools or communication types. This is message. Receiver कौन है? You are the receiver. You all the students are receiver. Okay. Next is function. इसका फंक्शन क्या होता है, ये किस तरीके से ये सारा कुछ चल रहा था. दिस इज वेरी इजी. जस्ट आपने अपनी अटेंशन रखना है, फोकस रखना है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए. नेक्स्ट इज, वेल, इंफॉर्मेशन और डिसिमिनेशन ऑफ समथिंग, परसुएशन, डिबेट, डिस्कशन, एंटरटेनमेंट और नॉलेज, ये एक जर्नल चीजें हैं जिसको जब आपने कभी कोई चीज आपने अपना मैसेज देना होता है किसी जरिए से, आप अपनी इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करते हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन को उसके मिसाल के तौर पर आप किसी के साथ बैठे हैं तो आप अपनी इंफॉर्मेशन दे रही हैं, उसको कम्युनिकेट कर रही हैं. अच्छा, आपने मैथ्स को करना है. अब हमारे पास टूल्स भी डिफरेंट आ चुके हैं. हमने टेलीफोन यूज करना शुरू कर दिया, टेलीफोन के जरिए भी हम ये सारी चीजें करते हैं. अ, हम टीवी के ज़रिए करते हैं. अब इंटरनेट की फैसिलिटी आ गई है. यू ऑल द पीपल नो दैट यस, टेक्स्ट के ज़रिए कर सकते हैं, एसएमएस के ज़रिए कर सकते हैं. दीज़ काइंड ऑफ आर डिफरेंट, इसके डिफरेंट टूल्स हैं. हमने मुख्तलिफ तरीकों से ये सारी चीज़ें अपना मैसेज भेज रहे होते हैं. मैसेज, अच्छा, जेस्चर के ज़रिए जैसे मैंने आपको कहा. अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ है. डू यू नो दैट साइलेंस silence is also, if I am communicating with you, I am giving my message and you are silent. Suppose, अब इसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं कि आप साइलेंट क्यों हैं, आपको मेरी बात क्या आवाज आ रही है. इसका मतलब ये है कि आपको आवाज मेरी आ रही है बट यू आर साइलेंट. साइलेंस के भी डिफरेंट वो हैं कि भाई साइलेंट, वो भी रिसीवर अपना मैसेज दे रहा होता है, जी मुझे पता चल रहा है, या नहीं पता चल रहा वो खामोश है. Yes, silence is also a, you can say it's also a receiver की तौर का रिप्लाई होता है. और कुछ सूरतों में ये होता है कि कुछ लोग बिल्कुल दे कीप मम ऑन एनी इशू, वो बोलते ही नहीं है. उसके आगे जाके हम पढ़ेंगे कि क्यों नहीं बोलते, वो क्या उसके अंदर इशू होता है. उसके डिफरेंट ठीक है, डिफरेंट उसकी उसके आप यूं कह सकते हैं कि उसकी रीजंस डिफरेंस है. आगे है जी इंफॉर्मेशन क्या है. ऑर्गेनाइजेशन तौर पे जब आपके मैसेजेस को किस तरीके से, इसके रीजंस हम आगे जाके पढ़ेंगे कि क्या, जी हमने टाइप्स पढ़ ली कि डिफरेंट. आगे जाके हम थोड़ा सा इसको मजीद हम इसको एलेबोरेट करेंगे. ये मैं आपके सामने जो एक स्केच ये सारा रख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, सो दैट यू गेट इट व्हाट इज कम्युनिकेशन. के डिफरेंट कम्युनिकेशन हमारे पास आ कैसे रही होती है और उसको हम ले कैसे रहे होते हैं, उसको हम पास ऑन कैसे करते हैं, हम रिसीव कैसे करते हैं. आगे आप जाके पढ़ेंगे इन कोड क्या होता है, डी कोड क्या होता है, नॉइज़ क्या होता है. जब तक आप तक आवाज़ भी आ गई, सब कुछ हो गया, फिर आपने उसके ऊपर रिस्पॉन्स कैसे दिया. ये सारा कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है. इसके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, इसके डिफरेंट थ्योरीज हैं. और ये जो डिफरेंट स्कॉलर्स की हमने जिस तरह से पढ़ा कि वो कहते हैं कि जब हम एक कॉमन स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं. मिसाल के तौर पे जब मैंने शुरू में आपसे बात की, मैंने कहा वेज ऑफ कंसेप्चुअलाइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द मास मीडिया एंड ऑडियंस. वो एक एकदम ऐसी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ या फ्लो ऑफ वर्ड्स हुए आपके पास आए, लेकिन आप अंडरस्टैंड नहीं कर सके कि ये, वेट अ सेकंड, आप अंडरस्टैंड नहीं कर सके कि ये क्या आपने कि कौन सी डेफिनेशन थी, इससे हमें कुछ समझ नहीं आया. अमूमी तौर पे ये होता है कि जब हम
बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जब भी कोई क्वेश्चन हम देखते हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले उसकी डेफिनेशंस लिखी होती हैं। डेफिनेशंस देख के, जैसे ये मैंने डेफिनेशन पढ़ी, मैंने ये डेफिनेशन चूज ही इसलिए की थी कि आप देखते हैं कि वेज ऑफ कंसेप्चुअलाइजिंग द रिलेशनशिप, आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे मैस मीडिया क्या है, ऑडियंस क्या है। सपोज ऑडियंस, हु इज ऑडियंस? जो जो रिसीवर है वो ऑडियंस है, वो लेता है इंफॉर्मेशन, वो अपने तौर पे अपने पास उसको समझ रहा होता है या समझने की कोशिश कर रहा होता है या उस तक मैसेज कन्वे हो रहा होता है। आगे देखें जी इसका, अ, इसमें जिस तरह से मैंने कहा कि इसको आपने किस तरह, अच्छा एक और चीज आ गई उसके अंदर कि मोटिवेशनल भी बात है उसके। थोड़ा-सा मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इसलिए ताकि आपके पास एक पूरा स्केच दोबारा से आ जाए। मैंने सबसे पहले अंडरस्टैंड, वो आपने बुक में भी देखा होगा, नोट्सों में भी देखा होगा कि सबसे पहले क्या है जी, वर्ड क लैटिन वर्ड है जी कम्युनिस, उसमें बताया गया है कि कम्युनिकेट करना, आप कोई बात कम्युनिकेट करते हैं उसके और कम्युनिकेट क्या करते हैं। अब हर वक्त ये जो आपके इसमें मोटे मोटे वर्ड्स लिखे हुए हैं वो देख के बंदा परेशान हो जाता है कि आइडियाज, ओपिनियन, ऑल द टाइम यू आर इंटरेक्टिंग, यू आर कम्युनिकेटिंग। मिसाल के तौर पे आप घर में बैठे हैं, आप बातें कर रहे हैं, हम इतने यूज टू हो जाते हैं हम कम्युनिकेशन में कि हमें पता नहीं लगता कि हम किस तरह से कम्युनिकेट करते जा रहे हैं और हम अपनी बात करते जा रहे हैं। और मल्टीटास्किंग बताया कि हमने प्रोसेस क्या है, हम घर में बैठे होते हैं, हम कहीं भी जा रहे होते हैं। ओके, थैंक यू। अब आप सब लोग थोड़े से होशियार हो गए हैं, फौरी तौर पे आपने सबके ओके के मैसेज आ रही हैं। थैंक यू वेरी मच। देखें, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ओपिनियन, थॉट्स, मैसेजेस, दीज आर द मैसेज। आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, साथ साथ बता रहे हैं, अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, अपना साथ तौर पर आप कह रहे हैं। आपने किसी को कहा कि मुझे पानी पिला दो, आपने उसको कम्युनिकेट किया, यू एक्सचेंज योर आइडिया, यू एक्सचेंज योर, you can say that your desire with someone. You are a source, you are a sender. Someone means you are, अपने भाई को, अपनी बहन को या someone या किसी और को आपने कहा, मैसेज ये दिया कि मुझे पानी पिला दो, आई वांट टू ड्रिंक वाटर, गिलास ऑफ वाटर। तो उसने एक मैसेज सुना। अब ये भी उसकी मर्जी है कि वो आपको पिलाता है या नहीं। ये अब रिसीवर जो है वो आगे से कहता है कि जी आई एम बिजी, सपोज, या उसने आपकी बात सुनी नहीं, इट मीन्स कि उस तक आपका मैसेज गया नहीं। ठीक है, ये कम्युनिकेशन का एक तरीका है। अब ये डिफरेंट एक प्रोसेस है उसका कि किस तरीके से हम इस प्रोसेस से गुजरते हैं। उसके बाद क्या है वो है इंटरेक्शन, कि किस तरह से इंटरेक्शन क्या करना है। सपोज हम इस टाइम मैं आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ थ्रू स्पीकिंग, मैं आपसे बोल के अपनी बात जो है कन्वे कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ, आई हैव फाउंड एन ऑप्शन, कैन यू, मैं आपके साथ बोल के अपनी मैसेज अपना कन्वे कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरा क्या तरीका है कि आपने सपोज किसी को ईमेल लिखनी है, यू राइट एन ईमेल टू समवन, दिस इज आल्सो मैसेज यू आर गिविंग, यू वांट टू गिव अ मैसेज थ्रू योर राइटिंग, या आपने उसको मैसेज दे दिया। उसके बाद क्या है, जेस्चर। जेस्चर में आपने किसी, जरूरी नहीं होता कि आपने कोई उसको कुछ लिख के बता दिया या कुछ स्पीक, आपने जैसे वो क्या कहते हैं कि कंधे उचका देना, आपने अपने शोल्डर के ज़रिए बॉडी एक्सप्रेशन के, वेरी गुड, बॉडी एक्सप्रेशन के ज़रिए आपने किसी को बताना है कि मैंने आपकी बात सुन ली है या नहीं सुन ली, या कुछ और जिस किस्म के बॉडी एक्सप्रेशंस होती हैं। उसके बाद क्या है, टचिंग के ज़रिए ऐसे टैप किया, ओ भाई बात सुनो, हेलो प्लीज़ कैन यू लिसन मी। उसके लिए जस्ट आप, या किसी को कहना है आप बस में बैठे हैं, थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन, वेरी गुड।
फेशियल एक्सप्रेशन जिसमें आप आपका जेस्चर दे रहे होते हैं, आपने स्माइल दे रहे होते हैं, आप गुस्सा दिखा रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें ये फेशियल एक्सप्रेशन के ज़रिए आप इंटरैक्ट कर रहे होते हैं दूसरे के ज़रिए। तो आपने ये क्या था कि ये इंटरेक्शन के डिफरेंट वेज हैं। अब आप ये देखें कि मैं जब ब्रॉडकास्टिंग में जब आपके साथ कोई स्पीकर वहाँ आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है, मिसाल के तौर पर मैं अब यहाँ आपको मिसाल दूँगा मोटिवेशनल स्पीकर्स की। मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या हैं जनाब? वो आपको कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कोई मैसेज, आपके साथ बात कर रहे होते हैं, आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं कि भाई आप पढ़ाई करें, अच्छी पढ़ाई करेंगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा और स्टेटस बनेगा, आप लोगों के आप अच्छे ऑफ़िस में होंगे, आपका अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी। तो उसने आपको कुछ ख़्वाब दिखाए, कुछ आपको बताया कि किस तरीके से आपने अच्छा पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। अब उसने ये सारी चीज़ें आपके सामने बयान की, डिफरेंट मिसालें दे के उसने आपको और ऑडियंस ऑडियंस कौन है? उसमें ऑडियंस आप थी। अमूमन ये होता है ये अब मैं थोड़ा-सा आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स का बता दूँ, कि अमूमन ये होता है कि किसी भी कंपनी में हायर आते हैं लोग बुलाए जाते हैं, वो आके आपको ये बता रहे होते हैं, सारा नॉलेज दे रहे होते हैं। ये इट्स अ डिफरेंट डिबेट, वी विल टॉक ऑन इट सम अदर डे। यहाँ तक हमने ये समझा कि डिफरेंट इसके वेज़ हैं कि किस तरीके से आपने कम्युनिकेट करना है और इसके बहुत सारी और चीज़ें। आगे हम चलते हैं इससे रिलेटेड कि आपको पता है कि इसकी जो मैस कम्युनिकेशन है, इसमें बारो की गई हैं, जो डेफिनेशंस हैं या थियरीज़ जो हैं, वो साइकोलॉजी से भी ली गई हैं, फिलॉसफी से भी ली गई हैं, सोशियोलॉजी से भी ली गई हैं। अनफॉर्च्यूनेटली क्या है कि हमारी जो मैस कम्युनिकेशन है, वैसे तो बहुत वसीड़ ये हो चुका है। अब हर वो क्या कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है, वो कहते हैं जनाब अब वो आपके सोशल मीडिया पे लड़ी जानी है। वैसे आप ये आगे जाके मैं आपसे ज़रूर पूछूँगा कि आप कितना सोशल मीडिया को जानते हैं या उसको कम्युनिकेशन के साथ किस तरह से रिलेट करेंगे कि वो किस किस्म का टूल है या नहीं है? वेल अब हम आगे चलते हैं कि ये मॉड्यूल्स क्या हैं? कम्युनिकेशन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मॉड्यूल्स क्या हैं इसके और मेथड्स क्या हैं इसके। पहले मैंने आपको बताया कि मेथड्स में और उसके अंदर आ जाते हैं वर्बल, नॉन वर्बल। उसमें क्या था, आपने जब बोला, जब आपने कि अच्छा इसके अंदर एक स्केच किसी की क्या कहते हैं कि एक तस्वीर जो होता है अच्छा हाउ मैनी ऑफ यू वांट टू बिकम अ जर्नलिस्ट? कितने आप में से हैं जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं? प्लीज़ वन बाय वन। ओके, अब मैं इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ एक बंदा आप में से जर्नलिस्ट बनना चाहता है? ओनली वन पर्सन, वन स्टूडेंट इज़ इंटरेस्टेड। ओनली वन। अच्छा नेक्स्ट जो हैं आप में जो आप स्टूडेंट्स हैं वो क्यों नहीं बनना चाहते? व्हाई? बिकॉज़ प्लीज़ राइट अ मैसेज। प्लीज़ क्विकली, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, आई वांट टू नो। माय क्वेश्चन इज़ आप में से कितने लोग हैं जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं? सिर्फ मुझे एक कर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप में से कितने लोग हैं जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, जो ख्वाहिशमंद हैं जनाब ये मैस कम्युनिकेशन हम पढ़ेंगे, उसके बाद आगे जाके ओके मी टू, उसके बाद अभी तक 2 के रिस्पॉन्स आया है, 2 का रिप्लाई आया है कि हम जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं। ओके 3 सैयदा आमना हबीब, आप जर्नलिस्ट नहीं बनना चाहती?
अज़ीम, आप ओके। आप कितने स्टूडेंट हैं इस क्लास के? मुझे एक आप में से बता दें इस टाइम रिसोर्स जो आप बैठे हैं आप लोग जो इसके अंदर। हाउ मैनी ऑफ यू? प्लीज कम क्विकली। राहिल, आई वांट यू टू 43। ओके, गुड, थैंक यू वेरी मच। वेल मैंने आपसे मैं आपके साथ ये कम्युनिकेट कर रहा था कि स्टूडेंट्स, ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं ये बता रहा था कि स्केच के ज़रिए भी एक इन्फॉर्मेशन, एक एक ये भी एक तरीकाकार है कि कोई उसके बारे में आपने देखा होगा कि एक बड़ी मशहूर किस्म की सेइंग है, वो क्या कहते हैं कि जो एक पिक्चर जो होती है, एक तस्वीर वो 1000 वर्ड्स के ऊपर भारी होती है। मीन्स इज़ वर्थ उसकी इतनी ज़्यादा होती है। कभी हम बहुत ज़्यादा बोल लें, बहुत ज़्यादा लिख लें, लेकिन जो तस्वीर जो है जब सामने आती है, वो तो बहुत कुछ बयान कर देती है। ये एक पुरानी बात है। अब तो चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई हैं। हम जब अपने आगे इस टॉपिक पे आएँगे तो मुझे ज़रूर आपने याद दिलाना है कि हमने इस बात यहाँ से स्टार्ट की थी कि स्केच क्या है? क्या ये भी कम्युनिकेशन के अंदर ये इसका असर होता है? अब क्या एडवांस हो गई है ना चीज़ें, अब बहुत सारी चीज़ें, मिसाल के तौर पर हमने अभी बात की थी, इंटरनेट आ गया, उसके ज़रिए से हम एक-दूसरे को देख भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें शुरू कहाँ से हुई थी? पिक्चर से, स्केच से। स्केच से भी कोई इन्फॉर्मेशन सपोज़ वो देना चाह रहे होते हैं। जब हम कोई डिस्कवरीज़ करते हैं, जब वो पुरानी कोई सपोज़ ये हड़प्पा और ये टेक्सला से रिलेटेड आपने देखा होगा। वहाँ जब उन्होंने खुदाई की तो वहाँ से जो वहाँ उनको स्केच मिलते थे, वो उससे ये अंदाज़ा लगाते थे कि ये क्या कम्युनिकेट करना चाह रही हैं या ये क्या ए, उन स्केचेज़ से कम्युनिकेशन उन्हें आइडिया मिल गया। अब हम आगे देखते हैं, एक सिंपल सा आपको मैसेज मैं वो बताता हूँ कि इसका मॉड्यूल से आप कह सकती हैं। वो है एसएमआर। वो क्या है कि जी सोर्स, सोर्स कौन है? सपोज आई एम द सोर्स। मैसेज, आई एम ट्राइंग टू गिव यू मैसेज अबाउट कम्युनिकेशन। ओके, उसके बाद है रिसीवर। रिसीवर कौन है? आप। ये मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ये ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। सिर्फ किताबी बातें काफी नहीं होती, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप जब इंटरेक्ट करते हैं तो आप बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाता है, बहुत कुछ अच्छा मवाद आपके लिए लिखने के लिए आपका बैक इन माइंड में इकट्ठा हो जाता है कि किस तरीके से ये चीज़ क्या है? जब आप क्वेश्चन को इस तरीके से देखेंगे, सपोज़ आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन थ्योरी? आप इसको ओके, थैंक यू। हम बात कर रहे थे कि सोर्स, मैसेज, रिसीवर, बार-बार मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ ताकि आपके इनकलकेट कर लें कि यू डोंट नीड टू कीप मम, you need to interact, you need to get knowledge through interaction, means you are getting what I am saying। उसमें क्या चीज सोर्स, व्हाट इज सोर्स? सोर्स, सपोज आई एम टॉकिंग इन अ पश्तो लैंग्वेज। मैं पश्तो लैंग्वेज या जर्मन लैंग्वेज या एनी अदर फ्रेंच लैंग्वेज में आपसे कहता हूँ, कोई भी मैसेज आपको ड्रॉप करता हूँ। मैसेज किसके थ्रू ड्रॉप करता हूँ? आई एम यूजिंग इंटरनेट, आई एम थ्रू ये जो समथिंग योर पोर्टल, एंड रिसीवर कौन है? आप क्लास, आप स्टूडेंट्स लोग। आपने मेरा मैसेज सुना, मैंने आपको मैसेज दिया फ्रेंच लैंग्वेज, आपके एयर ड्रम से या आपने आप तक मेरी बात गई। अब वो बात मैंने एनकोड की, मैंने आपको एक चीज कन्वे की। अब क्या है, आपने उसके ऊपर जेस्चर डिफरेंट देते हैं कि
सपोज आप अगर आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते तो आप या आप साइलेंट रहते हैं या आप फौरी तौर पे रिएक्ट करते हैं कि मुझे कुछ, यस यू विल यूज ट्रांसलेटर। और अगर सपोज कहीं ऐसी जगह पर आपको ट्रांसलेटर ना मुयस्सर हो तब एक और सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। एनीवे, इट वाज अ गुड इंटरेस्टिंग आंसर। देखें, आपने मैसेज लिया लेकिन आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सके कि ये क्या था। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसके भी डिफरेंट वो हैं, इसके भी डिफरेंट इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक है, इसके दरमियान में आ जाता है नॉइज़। मिसाल के तौर पे नॉइज़ क्या है? नॉइज़ ये है कि जनाब मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ लेकिन दरमियान में शोर होता है। दरमियान में आपको आवाज़ ठीक नहीं आ रही या मैं जो बोल रहा हूँ उसमें से आवाज़ कट-कट के आ रही है। वो मैसेज आप तक कन्वे ज़रूर हुआ, लेकिन आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सके। इसी तरह से राइटिंग में आपने अपनी तरफ से कोई चीज़ लिखी और वो भेजी या मेल की, जो नेक्स्ट जो रिसीवर था, अ, आप सोर्स थे, आप सेंडर थे, मैसेज भेजा, मैसेज था कि आई वांट टू अप्लाई समथिंग, मैं ये इंटरेस्टेड हूँ पढ़ने के लिए कहीं भी। जहाँ रिसीवर था आपने मेल एड्रेस गलत लिख दिया, वो उसके अंदर रिसीवर तक पहुँचा या रिसीवर तक नहीं पहुँच सका। उसमें रीज़न क्या थी? आपने गलत उसको इंटरप्रेट गलत कर दिया। तो ये पूरा मॉडल ही खराब हो जाता है, ये सारी चीज़ ही गलत हो जाती है क्योंकि आपने तो अपनी कोशिश की कि मैं उसको भेजूँ। तो स कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा ठीक ना हो सका। स्पीकिंग में भी इसी तरह से प्रॉब्लम कहाँ आई? जैसे हम देखते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं, उसकी वो लायानी किस्म के मुख्तलिफ वर्ड्स बोल रहे होते हैं छोटे बच्चे, लेकिन हम उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते कि वो क्या कह रही हैं। आहिस्ता-आहिस्ता ये क्या कहते हैं, जो लैंग्वेज है ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है आपको पता ही नहीं चलता आपके साथ छोटा बच्चा होता है, कुछ अरसे बाद आप देखते हैं आहिस्ता-आहिस्ता वो एक लफ्ज़ बोलता है, बड़े खुश होते हैं, 2 वर्ड्स पहल और फिर करते-करते जनाब वो हल्का-हल्का कम्युनिकेट वर्ड्स में करना शुरू कर देता है। वर्ड्स के साथ-साथ कभी वो जेस्चर्स में, फेशियल एक्सप्रेशंस में, कभी वो टच में, कभी किस चीज़ में, वो आपको मैसेज अपने दे रहा होता है। आप उससे मैसेज ले रहे होते हैं, अपना मैसेज उसको दे रहे होते हैं। अच्छा, वो इनकलकेट करता जाता है वो चीज़ें जो आप उसको दे रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके घर के अंदर उर्दू लैंग्वेज बोली जाती है। तो वो उसका माइंड उसको मेमोरी अपनी बढ़ाता जाता है और एक स्टेज आती है कि वो आपके साथ एक्सीलेंट वे में कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है। तो ये एक पूरा मॉडल कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से। अब हम इसमें देखते हैं कि 2 चीज़ें, एक तो थियरीज़, दूसरा है मॉडल्स। थ्योरीज और मॉडल्स, आपने कोई कभी आप में से कितने हैं जिन्होंने कोई थ्योरीज पढ़ी हैं कम्युनिकेशन की या वैसे कोई थ्योरीज? प्लीज कम क्विक। कोई थ्योरी आपने पढ़ी हो? मैजिक बुलेट थ्योरी का पता है आपको? व्हाट इज मैजिक बुलेट थ्योरी? यस और नो में मुझे प्लीज अपना मैसेज कीजिए। ओके, ओनली वन स्टूडेंट। यस, ओके, थैंक यू। प्लीज जरा आप अपना जरा मुझे रिस्पॉन्स जरा जल्दी कीजिए करें ताकि मुझे पता चल सके, ताकि मैं कि आप इसके अंदर कुछ आप अंडरस्टैंड कर रही हैं, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। वेल, इसमें क्या है जनाब, थ्योरी और मॉडल में फ़र्क क्या होता है? थ्योरी क्या होती है जी? थ्योरी इज़ अ एक्सप्लेनेशन, ओके? एक्सप्लेन कर रहे होते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग। प्लीज़ कम अगेन, आपने क्या लास्ट मैसेज था? ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आई गॉट इट। इसके थ्योरी क्या थी कि व्हाट इज़ हैपनिंग, उसके मुतालिक कोई नज़रिया, कोई बात की जाती है कि जी ये
और कम्युनिकेशन की थ्योरी उसको हमने ये जो अभी सारा इतनी देर से जो पढ़ रहा था ये कम्युनिकेशन की थ्योरीज, और उससे पहले हमने जो एक्सपर्ट्स थे उनकी भी बात सुनी कि उन्होंने किस तरीके से कहा कि ये सारी कम्युनिकेशन चलती किस तरह से है। वो किस तरीके से हम अनवेटिंगली या हम अनइंटेंशनली चीज़ों को गेट अपने ज़हन में ले किस तरह रहे होते हैं, इतना तेज़ प्रोसेस चल किस तरह से रहा होता है, हमें पता ही नहीं चलता। ये एक ऐसा ये सारा कम्युनिकेशन का एक कंप्लीट हो रही होती है। अच्छा, मॉडल्स क्या है? मॉडल्स होते हैं रिप्रेजेंटेशन। तो हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर एक उसका स्केच बनाते हैं कि हम पूरा बताते हैं कि ये इस तरह से इंफॉर्मेशन जाती है, फिर उधर से लेती है, मैसेज क्या होता है, उसको डिकोड कैसे करते हैं, उसको इनकोडिंग किस तरह से की जाती है। अब इससे पहले मैं आपको बता रहा था कि इसमें एरिस्टोटल का अगर हम सपोज़ पढ़ें, एरिस्टोटल मॉडल, वो उसने मुख्तलिफ उसने बड़ा सिंपली ये बताया कि इसके अंदर इन्वॉल्व कौन-कौन है। उसने बताया कि जनाब स्पीकर हैं, स्पीकर कौन है? जो बोल रहा होता है, जो सेंड कर रहा होता है अपना मैसेज, जो सोर्स होता है, ओके? अच्छा, उसके बाद क्या आता है स्पीच या मैसेज। सपोज़ अ, पार्लियामेंट का इजलास आप में से देखा होगा, जैसे कुछ लोगों ने कहीं प्रेज़ेंटर वेरी गुड। वो अपना उसके अंदर जो भी पॉलिटिशियन अपनी बात कर रहा होता है, वो स्पीकर हो गया, सोर्स हो गया, ओके? उसने स्पीच की, ओके, थैंक यू वेरी मच, यस, आई एम अ सेंडर, आई एम अ स्पीकर, आई एम अ सोर्स, आई एम गिविंग यू अ मैसेज, मैसेज इज़ अ अबाउट कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस चलता कैसे है। अब इसमें अरिस्टोटल की हम बात करें, उसका मैं पहले बता दूँ, फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। वो कहता है कि स्पीकर, स्पीच, स्पीच और फिर उसके अलावा मैसेज। नेक्स्ट इज ऑडियंस। हु इज ऑडियंस? ऑडियंस क्या होता है? ऑडियंस कौन है? एनी आइडिया? लाइक अस, वेरी गुड। You people are audience. You are getting my message. What I am conveying targeted. Okay, sometime it is targeted, sometime it is not targeted. Very good. अच्छा, इसका आगे जो वो बात करता है वो कहता है इसके अंदर जो चीजें इन्वॉल्व है, वो कहता है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स, क्योंकि मैंने जो मैसेज दिया आपको, वो उसके इफेक्ट्स क्या आते हैं आपके ऊपर। आपको ये मेरी बात समझ भी आ रही है नहीं, या ऊपर से गुजर रही है कि यार ये क्या कम्युनिकेशन, ये सोर्स, कंसेप्चुअलाइजेशन, वर्बल बॉडी, ये क्या बातें हो रही हैं, हमें नहीं समझ आ रही। ये क्या था, इसके इफेक्ट्स डिफरेंट हो गए, या आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। ये था इफेक्ट्स इसके ऊपर नेगेटिव। थोड़ी देर बाद उसके बाद वो कहता है ओकेजन्स, डिफरेंट ओकेजन्स में डिफरेंट बातें जब की जाती हैं, वो इस हद तक उसने बयान किया कि आपको कुछ बातें कुछ वक़्त में अच्छी समझ आती हैं, कुछ बातें इस तरह से होती हैं जब आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, कि जब आप तक मैसेज ज़रूर कन्वे हो रहा होता है, आप तक बात ज़रूर जा रही होती है, लेकिन वो लम्हा वो इस तरह का नहीं होता जिसमें आप अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये जनाब एरिस्टोटल मॉडल के अंदर उसने मुख्तलिफ बातें बताई। पब्लिक स्पीकिंग में जिस तरह से वो क्या होता है, वो आपको ट्राई कर रहे होते हैं कि आपको मैसेज जाए, आप उससे कुछ सीखें, कुछ समझ सकें। हमेशा क्या होता है कि आपको ये बात ज़हन में रखिएगा, जब भी कोई मैसेज कन्वे किया जा रहा होता है, उसमें से अब ये 80% तक आप तक अगर आपने उसमें अटेंशन की, फ़ोकस किया, 80% तक चीज़ें आपके ज़हन में मुख्तलिफ आपके सबकॉन्शियस में बैठती जा रही होती हैं। सपोज़ आपको लगता है ऐसे कि यार मुझे थोड़ा-सा समझ आया, थोड़ा-सा समझ नहीं आया, ओके। और मैंने कोशिश की, लेकिन वो ये होता है आपने कहीं अपने माइंड में वो चीज़ें बैठ ज़रूर जाती हैं। वो कहीं आपके बैक इन माइंड में कहीं जाके यूज़ यूज़ होती हैं, और फिर वो आपका माइंड वहाँ आपकी हेल्प करता है, जब आप
कोई कम्युनिकेट करने लगते हैं, आप कहते हैं हाँ यार ये बात मैंने वहाँ सुनी थी, ये बात कही गई थी कि ये स्केच हमें किस तरह से हेल्प करता है कम्युनिकेशन में। मैंने वो जैसे कि स्केच हमें कैसे हेल्प कर सकता है, स्मेल हमें कैसे अगर हम साइलेंट रहते हैं तो ये चीज़ किस तरह से हमने कम्युनिकेशन में ये कैसे हेल्प देती है, जेस्चर कैसे हेल्प देता है। तो इसके मुतालिक उसने ये बातें की। वो क्या कहता है स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस, इफेक्ट और ओकेजन। अच्छा इसके फिर वो कहता है कि डिफरेंट इसके एस्पेक्ट हैं। मिसाल के तौर पे एक स्पीकर है, वो अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर सक रहा, वो अच्छी तरीके से बोल सक नहीं रहा। ही इज़ नॉट कम्युनिकेटिंग इन अ वेल मैनर या एलोक्वेंटली वो उस तरह से उसने बात नहीं की। या उसका आप कह सकते हैं कि एक्सेंट जो है, वो डिफरेंट है। वो क्या कह सकते हैं कि जैसे वो सपोज़ एक फ्रेंच है, उसने इंग्लिश बोली तो साफ पता चल जाना है। जर्मन है, उसने अंग्रेज़ी बोली, तो वो पता लग रहा है कि जनाब ये इस तरह से लेकिन वो अपना मैसेज कन्वे करने में उस तरह से कामयाब नहीं होता। कम्युनिकेशन का प्रोसेस ज़रूर चल रहा होता है, लेकिन उसका डिफरेंट इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं किसके ऊपर? रिसीवर के ऊपर। रिसीवर कौन है? ऑडियंस। ऑडियंस कौन है? जिन तक मैसेज कन्वे किया जा रहा होता है। यू गॉट माय पॉइंट? ओके, थैंक यू वेरी मच। अब उसने कहा कि डिफरेंट मैसेजेस होते हैं। एक मैसेज ऐसा आपके साथ कम्युनिकेट किया जाए, जिसका आपके साथ ताल्लुक ही नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपके साथ एकदम ऐसी बात करूँ, सपोज़ मैं कहता हूँ कि जनाब सपोज़ मैं आपके साथ मैथ का कोई फ़ॉर्मूला इस वक़्त शेयर कर देता हूँ। आपने मेरी आवाज़ भी सुनी, आप तक ऑडियंस कौन है? आप हैं, आप तक आवाज़ भी गई, रिसीवर हैं, सब कुछ, ऑल थिंग वाज़ परफेक्ट। बट मैसेज में मसला था, उसका डिफरेंट इम्पैक्ट क्या आया, इफ़ेक्ट क्या आया कि आप तो अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके कि यार ये हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन की, दरमियान में इन्होंने ये जो जो सेंटेंस बोला या जो मैथ से रिलेटेड कोई बात की या किसी और चीज़ से रिलेटेड, तो वो हम समझ नहीं सके। ये इस चीज़ को उसने बयान किया है कि डिफरेंट उसके आपको रिस्पॉन्स मिल रहे होते हैं। इसके बाद हम ये आपको आई होप कि आपको एरिस्टोटल मॉडल्स थोड़ा-सा कुछ समझ आ चुका होगा कि इसमें उसने क्या कहा। आई होप यू गेट इट। ओके, ओके कि मैसेज अगर आपकी तरफ से आ जाए, दैट विल हेल्प मी टू प्रोसीड। उसके बाद करते हैं लीनियर एंड इंटरैक्टिव ट्रांज़ैक्शनल मॉडल। इसके अंदर क्या है जनाब, वही बातें हैं, उसके अंदर थोड़ा-सा उन्होंने इज़ाफ़ा कर दिया। सबसे पहले वो बताता है कि इन्फॉर्मेशन आई होप यू पीपल आर आल्सो राइटिंग डाउन नोट्स कि कुछ ना कुछ लिख रहे होंगे ताकि आप साथ-साथ अपना लिखते कुछ ना कुछ नोट ज़रूर करते जाएँ ताकि ओके, थैंक यू वेरी मच। आप साथ-साथ ज़रूर ताकि ना आपको ये एक पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं बाद में कि वो हमने जो सुना था, तो उसके अंदर ये बात की गई थी वो आपके जब आप उसको पॉइंट्स को देखेंगे आपके सामने सारा नक्शा बैठ जाएगा कि अच्छा हाँ, दैट वाज़ द पॉइंट एंड रिलेटेड टू दिस। वेल हमने ये इस मॉडल्स में क्या है कि जी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले वो कहता है कि इन्फॉर्मेशन, फिर वो कहता है कि ट्रांसमीटर, फिर वो कहता है रिसीवर। इसके दरमियान में इस चेन को वो डिस्क्राइब कैसे करता है? वो कहता है कि आपने इनकोड किया, एक मैसेज को मैंने आप तक पहुँचाया, भेजा, ठीक है? इनकोड किया। उसमें वो मैसेज गया, ट्रांसमिट हुआ, मैसेज आगे गया, आप तक पहुँचा, रिसीवर आप हैं। उसमें जनाब मैंने ये दोबारा प्लीज़ राइट करें, इसको शॉर्ट करके क्योंकि मैसेज फ़ौरन वो हो जाता है। आपने क्या लिखा कि टॉपिक
प्लीज राइट इट अगेन। कोडिंग है, थैंक यू वेरी मच। इन कोडिंग मैंने आपने मैसेज दिया, आप तक आवाज गई, उस रिसीवर कौन है? जो सामने था। अब ये हुआ कि रिसीवर का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस डिफरेंट था। His field of experience is entirely different. Means you belong to some far-flung area of North Waziristan. You only communicate in your town language. A person sitting in US, he speaks in English or in some other way. He cannot his field of experience मतलब कि उसने जो चीजें देखी, जो तजर्बात से गुजरा लाइफ में, उसके बिल्कुल डिफरेंट थे। उसने क्या देखा, मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन इस तरह से कर लेता हूँ। उनका माहौल इस तरह से था कि उनके घर के साथ एक नदी थी। उसने वो एक्सपीरियंस की। उनके घर के साथ पहाड़ थे और एक खुला आसमान था। खुला आसमान देखने के लिए जगह। जो बंदा यूएस में बैठा है और मिसाल के तौर पे डीसी में है, उसने, चलो डीसी इतना वो नहीं है, आप बात कर लें न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क के अंदर है, वहाँ तो बिल्डिंग्स हैं, वहाँ तो उस तरीके से उसमें ये सारी चीज़ें उसने एक्सपीरियंस नहीं की हुई। यहाँ का बंदा उसके साथ कोई चीज़ कम्युनिकेट करता है, उनका और उसका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट था, एंटायरली डिफरेंट। उसने जो चीज़ें देखी हैं, उसका एक्सपीरियंस वो अपने तौर पे बात करता है, वो अपने तौर पे बात करता है, तो वो उनका दरमियान में हम क्या कह सकते हैं, एक पॉइंट पे वो इकट्ठे नहीं हो पा रहे। कम्युनिकेशन का प्रोसेस ज़रूर चल रहा है, लेकिन फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस डिफरेंट है। अब फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस डिफरेंट है, इस वजह से उस वो ये प्लीज़ आपने दोबारा लिखे, आपने क्या लिखा? फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस डिफरेंट है, इसलिए उस तक आवाज जा तो रही है, वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी बात बता रहा है, लेकिन वहां तक उसको आवाज उस वो अपनी उस तक कम्युनिकेट हो नहीं रही, कम्युनिकेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें वो कहता है नॉइज। नॉइज क्या है कि जनाब उस तक रास्ते में कोई शोर था, इंटरेक्शन जो था वो सही तरह से नहीं होता, या वो अच्छा, उसका रिसीवर के रिस्पॉन्सेज़ को भी हमने देखना है। रिसीवर के रिस्पॉन्स क्या है कि वो सर हिला देता है कि हाँ, मैं आई एम गेटिंग यू, जस्ट इतना। ये एक जेस्चर आया, या वो नॉड में वो कर देता है। एग्ज़ैक्टली, वो अपना नॉड कर देता है, या वो कह देता है कि नफ़ी में सर हिला देता है कि नो आई एम नॉट गेटिंग यू। जस्ट वो इस तरह, या फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे देता है कि व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट गेटिंग यू व्हाट यू आर सेइंग। ये ये एक कम्युनिकेशन का उसने मॉडल पूरा बताया है। ये जिसके मुतालिक था। अगला जो मॉडल हम पढ़ते हैं वो डेविड बेर्लो का है। इसमें बहुत सारे कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं। ये मैंने चंद आपके लिए किए हैं। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। प्लीज मुझे ओके का मैसेज कर दें कि ये मॉडल्स किस तरह से एक्सप्लेन हुए हैं। इसके बाद हम एक और इंटरेस्टिंग मॉडल पढ़ेंगे। वो आर यू गेटिंग? प्लीज मुझे सेंड मी अ मैसेज। ओके, ओके, थैंक यू। नाउ डेविड बर्लो क्या कहता है कि सोर्स, वो बातें वही कर रहा है। वो कहता है कि सोर्स, ओके, थैंक यू। सोर्स, इनकोडर, सिग्नल, डिकोडर, रिसीवर। अब इसने थोड़ा सा उसको मजीद बयान करने के लिए क्या बातें की हैं कि सोर्स कौन है, वो कम्युनिकेशन करता है, वो आपकी अटेंशन ड्रॉ करने के लिए अपनी बात करता है, अपनी अटेंशन ड्राने के लिए अपनी बात करता है, और उसके दरमियान वो आपको नॉलेज देता है अपना, ये सोर्स ने दिया। इनकोडर क्या, उस वो मैसेज है, कंटेंट है, स्ट्रक्चर है किसी चीज का, ये उसने दिया। सिग्नल्स क्या है? सिग्नल्स क्या आगे ये मैंने आपको बताया, उसने सोर्स, इनकोडर, सिग्नल, डिकोडर और रिसीवर का बताया है। SMCR जो इसके मुतालिक बात होती है। अब चैनल क्या है? चैनल मिसाल तौर पे सीइंग,
टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, ये तमाम क्या थे, जो आपने सिग्नल जो आपने रिसीव किए। इसके बाद डिकोड किया। जो मैसेज आया कम्युनिकेशन का इनकोडर के ज़रिए आया, कंटेंट के ज़रिए आया, सिग्नल आप थे सिग्नल ये कौन से थे? जो मैंने बताए आपको कि आपने देख के किया, टच से किया, स्मेल से किया, ये टेस्ट करके किया, ये डिफरेंट आपके पास मैसेज गए। रिसीवर फिर इनके रिस्पॉन्स आ जाते हैं, वो कह देते हैं जनाब हम मुझे जी, आपको आवाज़ आ रही है? दरमियान में कुछ लोग आपका मेरे ख़्याल से आपकी साइड पे इश्यू होगा, बाकी सब लोगों को आवाज़ आ रही है। ये जो स्टूडेंट हैं वो कह रहे हैं कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही, उनके साथ कोई इश्यू होगा क्योंकि बाकी सब लोगों को आवाज़ क्लियर जा रही है। ओके? तो रिसीवर रिसीवर का उसके रिस्पॉन्स डिफरेंट है। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। अगर आगे हम चलें, अब हम थोड़ा-सा पढ़ते हैं कम्युनिकेशन थ्योरीज़। कम्युनिकेशन थ्योरीज़ ये कब डेवलप हुई थी? क्यों इनकी ज़रूरत पेश आई कि एकदम ख़्याल कैसे आया कि ये कम्युनिकेशन थ्योरीज़ भी इतनी इम्पोर्टेंस रखती है, इनको कहीं वो किया जाना चाहिए। कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद सेवरल स्टडीज़ जो आई थी, कंडक्ट की गई थी कि इम्पैक्ट देखें इनका कम्युनिकेशन का किस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर हो रहा होता है, ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर हो रहा होता है। हाउ मीडिया इन्फ्लुएंस किस तरह से कर रहा होता है, मतलब कि हमें बहुत सारी चीज़ों का हमें पता ही नहीं चल रहा होता। ओके, हम अब प्रोसीड करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमने आगे चलना है। उसमें मुख्तलिफ डिफरेंट थ्योरीज़ हैं। सबसे पहले है हिप्पोडर्मिक थ्योरी। हिप्पोडर्मिक थ्योरी इसका नाम वैसे नाम से बिल्कुल आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। इसको बुलेट थ्योरी भी कहते हैं, मैजिक बुलेट थ्योरी। उसमें वो क्या बताना चाह रहा है कि मीडिया इज़ अ पावरफुल टूल। मीडिया जो भी कुछ कह रहा है और कंज्यूमर्स जो हैं वो पैसिव हैं। जो भी इंफॉर्मेशन उन तक दी जाती है, उनके ज़हन में बैठ जाती है, वो फौरी तौर पे उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं और वो उनके मीडिया जो है, मीडिया के ज़रिए से कुछ भी किया जा रहा होता है। वो जो भी कुछ आपको बता दिया जाता है, आप उसको ले लेते हैं, आप उसका असर ले लेते हैं, आप उसको समझ पा रहे होते हैं कि यार ये मुझ तक जो इन्फॉर्मेशन जो दी जा रही है, ये बिल्कुल ठीक है। ये उसकी एक थ्योरी थी, ये है मैजिक बुलेट और ये फौरी तौर पे वो कहते हैं कि असर करती है। इसलिए इसको बुलेट का नाम दिए। व्हाटएवर इन्फॉर्मेशन यू आर गेटिंग अ uh, will influence on upon you on your mind and affects you. इस हिप्पोडर्मिक और या बुलेट थ्योरी के अंदर ये बताने की कोशिश की गई। नेक्स्ट नेक्स्ट है एजेंडा सेटिंग। एजेंडा सेटिंग उसमें क्या है जी, ये डोनाल्ड शॉ और माल्कम मैक ने उसे उन्होंने ये कहा कि ये बात कब आई थी, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दरमियान में उनके दरमियान में ये बात आई, उसमें ये कहा गया कि ये पॉलिटिकल जो डिबेट्स हैं, उसको किस तरीके से लॉन्च करना चाहिए। आप उसे जो वोटर्स से ताकि उन तक ऐसा मैसेज जाए कि ये बिल्कुल ठीक जो कह रहे हैं बात, इन्होंने बिल्कुल चेंज ले आनी है, बड़ा बेहतरीन वो हो जाना है। तो एक एजेंडा सेट कर रहे होते हैं। एक एजेंडा आपके लिए रिसीवर्स के लिए, ऑडियंस के लिए एक एजेंडा सेट किया जा रहा होता है कि आपको हम ये बात बता रहे हैं, आपके लिए ठीक होगी, आपको ये समझनी चाहिए। तो वो आप उससे एक मैसेज ले रहे होते हैं। आप उसको ये एजेंडा आप उससे मैसेज आपने ज़हन में लिया, जो आपको एजेंडा आपके सामने सेट किया गया। मतलब कि आप पैसिव हैं, आपको बताई गई बात, आपने जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है, आपके लिए एजेंडा खुद सेट करके रखा जा रहा है। मतलब कि आपको
खुद आप उसके अंदर चॉइस नहीं है आपके अंदर। बस आप तक जो चीज़ आ रही है वो आपने लेनी है। ये एजेंडा सेटिंग है। ओके? इसके बाद है लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी। वो भी कम्युनिकेशन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या है जनाब कि मतलब की जो चीज़ें हैं, जो आपको पसंद है, वो आप तक वो आप तक भेजी जाती हैं। मतलब कि आपकी मैं और या वो आप कंसीव करते हैं या वो आप लेते हैं। मिसाल के तौर पर लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी में ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन लिमिटेड आप तक पहुंचती है, आप उसमें से कुछ पिक एंड चूज कर लेते हैं कि ये चीज मुझे पसंद आई। जो आपकी पसंद की चीज होती है वो पिक आपका माइंड एक प्रोसेस से चलता है, आप उसको कर लेते हैं। ओके? उसके बाद है नार्कोसिस थ्योरी। वो भी इसी तरह है कि आपको डिसीव आपको रिसीव करने में थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी हो रही होती है। आप उसको लॉजिकल आपका रिएक्शन जो आ रहा होता है, वो उससे समझ नहीं आ रही होती। जिस तरह से आप में से कुछ मैसेज आ रहे हैं, उससे समझ आप अब हमने इसके बाद पढ़नी है कैथार्सिस, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। कैथार्सिस थ्योरी जो कम्युनिकेशन की है, वो क्या बात कर रही है? उसमें कहता है एक्सपेरिमेंटल इन लैब्स के अंदर जो एक्सपेरिमेंटल मीडिया कॉन्टेक्ट्स का इफेक्ट्स जो हो रहे होते हैं, वर्बल हो रहा होता है, रिएक्शन आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ 2 ग्रुप्स जो होते हैं, मिसाल के तौर पर एक ग्रुप को हमने कुछ और दिखाया, दूसरे ग्रुप को कुछ और दिखाया, उसका रिएक्शन जो था, वो हमारी तरफ डिफरेंट आया। उसके बाद हमने पढ़नी है कल्टीवेशन थ्योरी। ये मैं आपको इन सारी चीज़ों से टच इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको समझ आता जाए ये कम्युनिकेशन किस तरीके से वो हो रही होती है। कल्टीवेशन थ्योरी क्या क्या कि जितना ज़्यादा टीवी देखते हैं, जितना ज़्यादा कोई चीज़ देखते हैं, उस तरीके से आपके ऊपर असर हो रहा होता है। कल्चरल इफेक्ट्स इसके अलहदा होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आई वाज़ सिटिंग विद अ स्किन स्पेशलिस्ट। A lady came there. She was a patient. She was saying that I have a skin problem. Doctor said, uh, which dramas you are seeing? She said that I am watching. She said that I am watching domestic issues related dramas. Doctor said that you should stop seeing watching all these drama and visit me after a 1 month break. She was very astonished on the response over the response of a डॉक्टर कि मैं यहाँ आई हूँ कि मुझे तो कोई मेडिसिन दें, मेरा स्किन का साथ इश्यू हुआ है कोई, तो उसके लिए उनका नो, आपका जो इश्यू है वो रिज़ॉल्व हो जाना है कि आप जस्ट इतना अरसा आपने कोई मेडिसिन कोई ये ड्रामे नहीं देखने, ये दुःख भरे ड्रामे जो चल रहे होते हैं। वो आपके ऊपर उनका असर डिफरेंट आ रहा है। अच्छा मैं आपको मिसाल इसलिए पेश कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल है। मैं थोड़ा-सा उसके अंदर मुझे क्यूरियोसिटी हुई, मैंने 1 मंथ के बाद डॉक्टर से जाके पूछा कि आप ये उसका क्या रिस्पॉन्स आया? उन्होंने कहा कि 1 मंथ के बाद वो दोबारा जब वो पेशेंट आया, वो ठीक था, उसको कोई मसला नहीं था। तो बहुत ज़्यादा कोई चीज़ देखने से उनके बॉडी के ऊपर असरात आ रहे होते हैं। ये एक अलहदा एक हम कम्युनिकेशन का हमने वो देखे। अच्छा, इसके अंदर डोमेस्टिक इश्यूज़ भी आ जाते हैं इसके अंदर सॉरी कल्चरल इश्यूज़। मिसाल तौर पर हम ये देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किया जा रहा होता है। बहुत सारे छोटे बच्चे वो कहते हैं कि जनाब शादी की तकरीब होती है क्योंकि उन्होंने इंडियन फ़िल्में बहुत ज़्यादा देखी होती हैं। तो उसमें वो व्हेन कि दूल्हा-दुल्हन वो फायर के गिर्द चक्कर कब लगाएँगे वो दरमियान में। उनके ज़हन में वो कल्चरल जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट आए होते हैं। इसे क्या कहते हैं जनाब कि वो कल्चरली उसके अंदर डिस्टर्ब हो जाती है। उन तक मैसेज वो पहुँचा होता है, उन्होंने ज़हन में वो रखा होता है। तो ये मैं आपको बताने लगा था कि कल्टीवेशन थ्योरी के इफ़ेक्ट्स कम्युनिकेशन के ज़रिए से डिफरेंट पड़ रहे होते हैं हमारे।
इसके बाद है स्पाइरल ऑफ साइलेंस। स्पाइरल ऑफ साइलेंस में ये है कि इफ यू हैव अ fear that if I will speak, I will write something that will be wrong, तो मेरी सुबकी हो जानी है, गलत हो जाना है, और मुझे ना खामोश रहना चाहिए, या मेरी ओपिनियन जो होगी वो गलत होगी, माइनॉरिटी में मैं होऊंगा, मैं मेजॉरिटी में नहीं होऊंगा। आप हेजिटेट करते हो, आप नहीं बोलते, आप नहीं कम्युनिकेट करते, आप शाय रहते हो। तो इसका मतलब ये है कि स्पाइरल ऑफ साइलेंस, आपने उस तरह से अपनी ओपिनियन को असर्ट नहीं करते। नो जब क्योंकि क्यों नहीं कर रहे होते कि कहीं मैंने ये बात की, जो मैंने मैसेज दिया, वो कहीं गलत ना हो जाए। तो ये इसका था। इसके बाद हम देखते हैं, ये स्पाइरल ऑफ साइलेंस था। अब सोशल लर्निंग, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, चीज़ों को, उनको देख रहे होते हैं। यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी, पीपल चूज एंड पिक करते हैं इंफॉर्मेशन, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट वगैरह। इसके बाद है ये प्रेस के अंदर, ये जो कम्युनिकेशन ये थ्योरीज हैं वो किस तरह से, मैं तेजी से आपको बता देता हूँ कि अथॉरिटेरियन थ्योरी, जो प्रेस, वो कंसीडर किया जाता है प्रेस इज अ सबऑर्डिनेट, मतलब कि डिक्टेटर इरा के अंदर ये थ्योरी इंट्रोड्यूस कराई गई थी। दूसरी है फ्री प्रेस थ्योरी, वो इसका बिल्कुल उल्ट है। वो है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए, वो फिर वो आती है। इसके बाद थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या बताना है, क्या नहीं बताना, व्हाट टू से, व्हाट नॉट टू, ये उसके मुतालिक था। ये मैंने पूरा आपको बताया कम्युनिकेशन किस तरह से होती है, कम्युनिकेशन थ्योरीज क्या है, कम्युनिकेशन मॉडल्स क्या है, वो किस तरीके से हमारे ऊपर असर कर रहे होते हैं, ये सारा प्रोसेस चल क्या रहा होता है। अब हमें इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी ऑन कम्युनिकेशन थ्योरी। ओके, यू आर गेटिंग। अब हम अगले उसके ऊपर आ गए हैं, इम्पैक्ट या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी ऑन कम्युनिकेशन थ्योरी। थैंक यू। कि ये सारा कुछ मैंने समझाने का मकसद ये था कि आपको जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो फिर क्या होता है। हाउ मैनी ऑफ यू आर यूजिंग ट्विटर, हाउ मैनी ऑफ यू हैव अ ट्विटर हैंडल्स यूजिंग ट्विटर क्लास, हाउ मैनी ऑफ यू, कितने स्टूडेंट्स हैं जो आपके, जो ट्विटर यूज कर रहे हैं, ट्विटर। वेरी गुड। ओके, ठीक है। मैं ये जानना चाह रहा था आप ट्विटर पे, आप क्योंकि मैस कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ओके, अब देखें आगे क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जब न्यू टेक्नोलॉजी क्या है और ओल्ड टेक्नोलॉजीज क्या थी। ओल्ड टेक्नोलॉजीज आपके सामने टीवी था, एफएम था, टेलीफ़ोन था और टेलीग्राफ था। ये 3-4 चीज़ें थी, ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉज़ी होती थी। टीवी के ऊपर क्या होता है, चैनल क्या होता था, 1-2 चैनल आते थे। एक खबरनामा आता था, उसके अलावा एक आधा अ, ड्रामे आ जाता था, और कोई एक और प्रोग्राम आ जाता था, किसानों से रिलेटेड आ जाता था। इस तरह की तो एफएम के ऊपर गाने चलते थे। टेलीफ़ोन आप तो जानते हैं उसका इस्तेमाल। टेलीग्राफ आप लोग नहीं जानते होंगे, ये पुराने ज़माने की, उसको कन्वर्ट कर दिया गया, अब डिफरेंट उसकी वो आ गई। अब जब ये सारी चीज़ें मोल्ड हुई, थोड़ी-सी चेंज हुई, तरक्की हुई, जब न्यू टेक्नोलॉजी आई, तो इसका बड़ा असर पड़ा। सपोज़ अ, हमारे यहाँ जब हम अगर कम्युनिकेशन से इसको रिलेट करके पढ़ें, जब हमारे यहाँ मशरूम ग्रोथ हुई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। पहले हमारे यहाँ क्या होता था, जब मैसेज को फैलाने के लिए मैस मीडिया तक थोड़ा-सा जब हम मैसेज को डिसेमिनेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, न्यूज़पेपर या मैगज़ीन्स या इस चीज़ का। फिर उसके बाद क्या आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। यस, दिस इज़ प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे यहाँ ओनली पीटीवी होता था और उसके ज़रिए से हमें इन्फॉर्मेशन आई थी। ये मशरूम ग्रोथ हुई थी आपके 2004 के करीब। उसमें ये आ गए थे, डिफरेंट चैनल्स आ गए थे। डिफरेंट चैनल्स की आपके पास एक चॉइस आ गई थी।
उस चॉइस में आपने सेलेक्ट करना था कि आपने क्या देखना है, क्या नहीं देखना और फिर उसके असरात भी डिफरेंट थे। मिसाल के तौर पर आप को कोई चैनल मैं अगर जियो की बात करूँ, एआरवाई की बात करूँ, समा की बात करूँ, अब तो उनका सबका डिफरेंट हो चुका है। इसको हम पॉलिटिकली भी डिस्कस ये कर लेंगे कि हर किसी का पॉलिटिकली डिफरेंट उनके मैसेजेस आ रहे होते हैं। एक जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको डिफरेंट तरीके से बयान किया जा रहा होता है। अच्छा इसके न्यू टेक्नोलॉजीज़ के आपके ऊपर असरात क्या हैं? नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। नेगेटिव क्या है? पॉजिटिव क्या है कि आप नॉलेज बेबहा किस्म का नॉलेज आपके पास आ रहा होता है, एक्सेस कर रहे होते हैं, गूगल हो रही होती है, इंटरनेट की इजाद से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है। आपका ब्रेन इस्तेमाल हो रहा होता है, मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा होता है कि और जहाँ हमने पहले बात की थी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, आपका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जहाँ डिफरेंट था, मिसाल के तौर पे मैंने बात की थी कि एक यहाँ का गाँव का बंदा जब इंटरैक्ट करेगा न्यूयॉर्क के बंदे के साथ उनका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा, तो उसको उसकी बात नहीं समझ आएगी। इंटरनेट जब आया, जब ये सारी चीज़ें हुई, तो उसने वहाँ की गूगल की देखता रहा, ये सारी यूट्यूब वगैरह, उसको समझ आना शुरू हो गई कि वहाँ ऐसा माहौल है, ये चीज़ें होती हैं। तो ये न्यू टेक्नोलॉजीज़ के फ़ायदे भी हुए। उसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी हुए, उसके कल्चरल इफ़ेक्ट्स भी हुए और उसके दूसरे इफ़ेक्ट्स भी हुए। और क्या हुआ उसके अगर हम उसके ह्यूमन बॉडीज़ के ऊपर देखें इफ़ेक्ट्स मिसाल के तौर पर इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि स्किन स्पेशलिस्ट ने क्या बात की कि एक चीज़ को इतना ज़्यादा ज़हन पे सवार कर लें। आजकल के बच्चे आप देखेंगे हर किसी के हाथ में टैब है, वो इंटरनेट यूज़ कर रहा है और वो इंटरनेट यूज़ उसको बाहर की दुनिया का कोई नहीं पता होता। वो उसको रियल वर्ल्ड समझ रहा होता है कि वही ठीक है। आप 10 लोग इकट्ठे बैठे होते हैं, इंटरनेट या 5 लोग इकट्ठे बैठे हैं, आप फ्रेंड्स बैठे हैं, फिज़िकली आप सब लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन आप आपस में बात नहीं कर रहे होते हैं, आपके हाथ में मोबाइल्स होते हैं और आप कम्युनिकेट कहीं और कर रहे होते हैं। आप कम्युनिकेट उस तरह से नहीं कर पा रहे, आप आपस में इंटरनेट की मैं बात कर रहा था कि इसके सोशल इन्वॉल्वमेंट इसमें डिफरेंट किस्म के हमारे ऊपर इफेक्ट्स आ जाते हैं। कोरोना के अंदर क्या हुआ था? ऐसा तो लगता था सब चीज़ बंद हो जाएगी, लेकिन इंटरनेट की वजह से अगर मैं पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करें, न्यू टेक्नोलॉजी की बात करूँ, कम्युनिकेशन की बात करूँ, वर्क फ्रॉम होम का फ़ॉर्मूला इजाद किया गया और कम्युनिकेशन का सिस्टम चला, सब चीज़ें बेहतरीन गई। अब क्या होता है इंटरनेट के ज़रिए से आप देखते हैं कि मैसेज एक-दूसरे को या पॉज़िटिव मैसेज की मिसाल के तौर पर आपको ईद का मैसेज आना है कि इस दिन ईद होगी या बारिश होगी या सारी चीज़ें होंगी या कोई छुट्टी का मैसेज या स्कूल से आना हो। आजकल तो इस तरह से कह दिया जाता है, बच्चों को मैसेज आ जाता है कि जनाब उनके पेरेंट्स को कि कल छुट्टी होगी। वो मैसेज से ये सारा कुछ कन्वे कर दिया जाता है। ये न्यू टेक्नोलॉजी जो आई हैं, उनके इफ़ेक्ट्स होते हैं। डेली रूटीन में, डेली लाइफ में उनका फ़ायदा हो रहा होता है। अब वो एडवांस टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आजकल क्या होता है कि बच्चे को के हाथ में हम देखते हैं कि मोबाइल उसको दे दिया, वो वहीं से सब कुछ सीख रहा है, वहीं देख रहा है और वो उसको रियल वर्ल्ड समझना शुरू कर देता है। वो समझता है कि मैंने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना ये ठीक था। पहले क्या थी एक्सेस जो थी वो थोड़ी-सी कंट्रोल्ड थी। वीसीआर था, एक फ़िल्म लेनी, उसके अंदर देखनी और वो वहाँ तक महदूद था। अब इंटरनेट के ज़रिए आपके पास आप अ, किसी भी तरीके से बड़े सुकून से आप अपने मैसेज दे रहे होते हैं। आप अपना जो चाहें आपके पास चॉइस बहुत ज़्यादा आ जाती है। इसके इफ़ेक्ट्स डिफरेंट हैं, हमने ये भी बात की कि इसका नेगेटिव भी है, पॉज़िटिव भी है। अब मैं इसको रिलेट करूँगा ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है, इसका ये जो थ्योरीज़ हैं, उसके साथ कैसे? देखें चैलेंजेस भी हैं, पॉलिटिकल कैम्पेन्स में आप देखते हैं, अब तो जिसने आप लोगों ने ट्विटर जिसने यूज़ किया मैंने आपको बताया, ट्विटर स्पेस आ चुकी हैं, उसके अंदर क्या बताया जा रहा होता है कि ये देखें जी
डिस्कशंस हो रही होती हैं डिफरेंट, अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ वो कोई बात अज़ादाना उसके ऊपर की जा रही होती है। अब इस डिबेट को थोड़ा सा आगे लेके जाएं तो उसमें हम ये भी देखते हैं कि इसके मुतल्लिक कवानीन भी बन रही हैं, क्या अमेंडमेंट्स हो रही हैं, लेजिस्लेशन हो रही है कि इसको ये ठीक भी चल रहा है या नहीं, इसको किस तरह से देखा जाए, नेगेटिव जिस तरह से उसका यूसेज आ जाता है। एजेंडा सेट, पहले तो एजेंडा सेट कर लेना, किसी तक अपना मैसेज कर देना और उस तक मैसेज चले जाना और उसने वो बात सुन लेनी। लेकिन अब ये है कि जो रिसीवर है, जो ऑडियंस है, उनके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा है। एजेंडा सेटिंग में जिस तरह से हमने पढ़ा था कि किसी के लिए एजेंडा सेट कर दिया, उसने जहाँ बस वो मैसेज ले लिया और उसने उसको समझा कि यही ठीक है। अब उसने स्विच्ड ऑफ कर देना है, उसने नेक्स्ट चैनल पे चले जाना है या उसने एक और इंटरनेट खोलना है, कोई और साइट देखना शुरू कर देना है कि यहाँ से मैं ये इन्फॉर्मेशन ले लूँ, ये मवाद ले लूँ या इसके मुतालिक समझ लूँ। फिर उसके बाद है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन थ्योरी के मुतालिक जिस तरह से आपने देखा कि जिसने जितना भी नॉलेज लिया, वो उस तक पहुँचा, वो उसने अपने बहुत ज़्यादा जब मैसेज लिया बहुत ज़्यादा टीवी देखा या बहुत ज़्यादा कोई एक्सेस की किसी चीज़ की, तो उसके नेगेटिव असरात आने लग गए। ये मैंने आपको अब जो बताया कि इम्पैक्ट या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी ऑन कम्युनिकेशन थ्योरी किस तरह से हुई। ये मैंने आपको इस तरह से ये सारी चीज़ें आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल द थिंग्स। डिड यू गेट इट? आपको जो बताई हैं थ्योरीज़ उसमें मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। पहली हमने पढ़ी हिप्पोडर्मिक थ्योरी, मैजिक बुलेट, जिसको मैजिक बुलेट थ्योरी भी कहते हैं। और उसके बाद थी एजेंडा सेटिंग। जी, जी, बिल्कुल। उसके बाद थी लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी, कि किस तरीके से लिमिटेड उसका इफेक्ट्स होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो यू आर गेटिंग। उसके बाद थी कैथारसिस थ्योरी, कि मीडिया वेरी गुड, कि मीडिया को कंटेंट के किस तरह से इफेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद थी कल्टीवेशन, इसको तो मैंने आपको बड़े लेंथ से इसका एक्सप्लेन किया था कि कल्टीवेशन थ्योरी किस तरह से मैसेज जो है आप तक, व्यूअर तक जा रहा होता है और उसको किस तरह से, किस सिंड्रोम से गुजर रहे होते हैं। कोई चीज आपने बहुत ज्यादा देख ली तो उसको क्या किस तरह लगता है। उसके बाद हमने पढ़ा था स्पाइरल ऑफ साइलेंस, कि आप शाय होते हैं, फेयर होता है आपके ज़हन में कि मैं मिनॉरिटी में ना आ जाऊँ, मैं अपनी बात तो कर रहा हूँ, आप हेजिटेट फ़ील करते हैं कि मैं मेजॉरिटी में जो बात है वही ठीक होगी, मैंने जो बात करनी है वो गलत है शायद, वो शायद गलत साबित हो सकती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी, वो ये है कि आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज़ ए ह्यूमन बीइंग, एज़ ए प्रोफेशनल, कि आप अपना पार्ट किस तरह से प्ले करते हैं किसी भी चीज़ में। वो सोशल लर्निंग। एक है यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन, जो मैंने बताया कि जो चीज़ आपको पसंद होती है, जो इन्फॉर्मेशन वो आप ले लेते हैं, जो सूट कर रही। और फिर हमने उसके बाद प्रेस की थ्योरीज पढ़ी थी, अथॉरिटेरियन, जिसमें ये ऐसा सोच लिया जाता है कि प्रेस इज सबऑर्डिनेट, इसमें डिक्टेटर ईरा में ये थ्योरीज हम देखते हैं, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही होती है। फ्री प्रेस, उसके बिल्कुल वो कहते हैं कि नहीं, कि प्रेस आज़ाद है, प्रेस जो कुछ लिखे वो ठीक होता है। और ये थी। तो होप यू स्टूडेंट्स यू गेट व्हाट वी डिस्कस टुडे इन आवर टॉपिक। आज हमने जो डिस्कस किया, आपको मेरा ख्याल से कुछ समझ आई होगी इसके मुतालिक। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। ये हमने इंटरेक्टिव सेशन रखा ताकि आप लोग अपना पार्टिसिपेट ज़रूर करें, क्योंकि कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो पार्टिसिपेशन तो ज़रूर होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफ़िज़।